Welcome in A part of lecture 9th. In this lecture, we solve a question in which we need to find eigenvalue and eigenfunction for a homogeneous Freedom integral equation in which kernel is separable, and discuss three important questions which are asked in GATE exam based on this topic. Solve the homogeneous integral equation GS is equal to lambda 0 to 1 e की power s plus t gt and dt. Now here we are concentrate on our kernel. The kernel kst is equal to e की power s plus t. You can write your kernel kst as e की power s into e की power t. So there is separable. Symmetric भी है, separable भी है, तो you can apply the theory of algebraic system. So I will write this equation as g of s is equal to lambda 0 to 1. I'm taking e की power s is outside, so it gives e की power t, z of t and d of t. Let us suppose this is equation 1 and this is equation number 2. I will take this expression as c1, so it is equal to lambda e की power x and c1, where your c1 is equal to 0 to 1 e की पावर t gt एंड dt. ठीक है. अब जैसे प्रीवियस लेक्चर 8 के पार्ट में हमने किया था, देयर वी सॉल्व्ड इनहोमोजेनियस इक्वेशंस, यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था. ठीक है. तो आज आपका कौन सी इक्वेशन है? होमोजीनियस. दिस इज होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड एंड पुट g of t. Here after putting c1 I obtained this one. So g of t is what? Lambda e की power t c1. Now use this value in equation number 3. So we obtained c1 is equal to 0 to 1 e की power t lambda e की power t c1 d of t. Now integrate this. When I integrate and I put the limits, I obtain this expression. ठीक है. अब आप इसको लेफ्ट साइड में लेके जाइए. तो c1 माइनस लैम्डा बाई 2 ई स्केयर माइनस 1 c1. So this is 1 minus e square minus 1 lambda by 2 c1 equal to 0. Actually my objective is to construct AC is equal to F. अब क्योंकि आपका homogeneous system है, so your right hand side will be equal to 0. Here we find the eigenvalues and the solutions. One more thing, as I told in 7th lecture when I gave the definition of eigenvalues, मैंने 1 by lambda लिया था. अब यहाँ देखिए, if lambda you will take the 0, तो g of s trivial value gs equal to 0 always satisfy this one. So lambda equal to 0 is never eigenvalue for these equations. I told there the definition of eigenvalues for the homogeneous system, the value of lambda for which your homogeneous system has a non-trivial solution other than 0 आपका सॉल्यूशन होना चाहिए. दैट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज योर आइगन वैल्यूज एंड द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एस इज नोन एज द आइगन फंक्शन. ये 7th लेक्चर में मैंने आपको डेफिनेशन दी थी. तो व्हेन यू अप्लाई द कंडीशन ऑफ होमोजेनियस अलजेब्रिक सिस्टम, आई ऑब्टेन हियर 2 cases and these cases are, I again explaining this one. AC is equal to 0, right hand side is 0, and suppose A is my n cross n matrix. So there are how many variables? C1, C2, C3 up to Cn. n variables हैं. तो आपने यहाँ पे determinant of A check करना है. If determinant of A in the homogeneous system of equation this is not equal to 0, in that case always trivial solution exists. यानी all the C1, C2, C3, Cn all are 0. And if determinant of this one is equal to 0, तो there are infinite solutions. आपने किया होगा A मैट्रिक्स का आप रैंक निकालते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल n है तो n माइनस आर कुछ आप करते थे ऐसे. तो आज इतना जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको लर्न होना चाहिए. आप इसका रैंक निकालते हो, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, एंड सपोज दिस इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज आर, एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं इस केस में वो कितने हैं? जनरलाइजेशन n. तो n माइनस आर वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल and there are infinite many solutions. Remaining r variable they depend upon these variables. ठीक है. तो let us apply these conditions here. मतलब है तो ये वही वाली conditions, हम इसको ऐसे अप्लाई करेंगे. देखो, in our case
दिस इज़ माई ए मैट्रिक्स। अब ये 1x1 मैट्रिक्स है और ये राइट हैंड साइड सी है, मेरा वेरिएबल भी एक ही है इस क्वेश्चन के अंदर। प्रीवियस जो लेक्चर किए थे हमने उसमें मेरे वेरिएबल थे C1 एंड C2, ठीक है, ये इक्वल टू 0 है। तो इनमें केस क्या होगा कि अगर ये वैल्यू डिटरमिनेंट यानी कि 1 वैल्यू दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर ये टर्म 0 नहीं है तो इसका मतलब कौन 0 होगा, C 0 होगा। C अगर 0 है तो इक्वेशन नंबर 2 में C को 0 पुट कीजिए, तो GS इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कंडीशन आएगी ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। नाउ माय क्वेश्चन है जो गेट के एग्जाम में और वहाँ आता है, तो क्या आइगन वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, देयर इज नो आइगन वैल्यू, ठीक है ना। एक ही पॉसिबिलिटी बन रही थी यहाँ पर, मतलब फॉर लैम्डा इक्वल टू 0, क्या लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए GS आपका 0 बनेगा, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू 0 यहाँ पर आइगन वैल्यू नहीं है आपकी, ठीक है। अब सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस क्या है, ये वाला, जहाँ इन्फिनिट सॉल्यूशंस आते हैं, तो यहाँ आइगन वैल्यू तो आपको मिलेगी इस क्वेश्चन में। वो क्या मिलेगी, केस सेकंड कहते हैं व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, हेयर माई मैट्रिक्स इज 1x1, तो आई विल टेक 1 माइनस लैम्डा ई स्क्वायर माइनस 1/2 इक्वल टू 0 एंड कैलकुलेट हेयर लैम्डा वैल्यू। लैम्डा इज नथिंग बट 2/e स्क्वायर माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो ये इधर ले जाओ वो इधर करो, तो ये वैल्यू आपकी लैम्डा मिलेगी। नाउ कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ function g of s. So c lambda is this one, and corresponding to this case when this determinant is equal to 0, my solution c is our नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है कि c नॉट इक्वल टू 0 होगा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं कि आइदर दिस 0 और दिस 0, एक बार इसको 0 ले लो, एक बार इसको 0 ले लो, ठीक है। इन दिस केस c इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स वाई आई एम गेटिंग द सॉल्यूशन, अदरवाइज द ट्रिवियल सॉल्यूशन इज ऑलवेज एग्जिस्ट। एंड for this trivial solution in the homogeneous case, no lambda equal to 0 is not the eigen value, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, GS इज इक्वल टू लैम्डा ई के एस C आपको यहाँ रख सकते हो। अब इसको आप ऐसे कर सकते हो C स्टार ऑफ e की पावर ऑफ s। अब कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू कि लैम्डा इज इक्वल टू 2/e स्क्वायर माइनस 1, दिस इज माई आइगन वैल्यू, एंड फॉर दिस आइगन वैल्यू सॉल्यूशन जो होगा आपके वो कितने एग्जिस्ट करेंगे, e की पावर s इज माई आइगन फंक्शन। एंड आई आल्सो टोल्ड यू कि मल्टीपल ऑफ आइगन फंक्शंस आर आल्सो द आइगन फंक्शंस। सो कॉरेस्पॉन्डिंग टू सिंगल आइगन वैल्यू देयर एग्जिस्ट इन्फिनिटी मैनी आइगन फंक्शंस, बट दे आर लीनियर, दे आर डिपेंडेंट। तो इसको किसी भी कॉन्स्टेंट से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन यू विल गेट ए आइगन फंक्शंस। सो this is my eigenvalue and this is my eigen functions, and for the given problem infinite number of solution exist for this value lambda के लिए, ठीक है। So here we can conclude that when lambda is not equal to 2/e square minus 1, I have the trivial solution, ठीक है। one more thing, इसमें थोड़ा confusion रहता है स्टूडेंट को। if lambda equal to 0, again g of s is equal to 0, ये हमेशा ट्रिवियली सेटिस्फाई करेगा। विदाउट कैलकुलेशन भी वी कैन फाइंड दिस रिजल्ट। देखो ना इक्वेशन फर्स्ट के अंदर अगर आप लैम्डा 0 करेंगे तो ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। इन दिस केस दिस वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 0 इज़ नॉट द आइगन वैल्यू, क्योंकि आइगन वैल्यू वो होती है जिसके लिए हमारा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ये तो ट्रिवियल सॉल्यूशन है, हमारा फर्स्ट केस है, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है इन केस ऑफ होमोजीनियस सिस्टम। एंड वन मोर थिंग, देर इज वन आइगन वैल्यू दैट इज 2/e स्क्वायर माइनस 1, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस आइगन वैल्यू माई आइगन फंक्शन इज e की पावर s. नाउ आई एम शोइंग यू 2 more questions, and these are find the eigenvalue of the integral equation. This one is which one? ये क्वेश्चन है, ठीक है। इट वॉज आस्क्ड इन 2005 गेट एग्जाम. आई विल गिव द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन टुडे. दिस इज असाइनमेंट टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन में करवा चुके हैं. जस्ट डी लैम्डा निकालना आपको इस क्वेश्चन में, डी लैम्डा इक्वल टू क्या कर देना है 0, ठीक है. तो रूट्स जो आएंगे दैट इज़ द आइगन वैल्यूज़ फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है. एग्जाम में क्या होता है कि यही क्वेश्चन होता है और इसके आइगन फंक्शंस भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है. तो ये हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि 9th लेक्चर के बी पार्ट में. आई विल गिव यू द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, एंड
it is very helpful for me for the 10th lecture. There is inhomogeneous Freedom integral equations के हमें आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन फंक्शंस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस वो कंडीशंस फाइंड आउट करनी है. इन दैट केस आई नीड कॉरेस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशंस. अगर वो सिमेट्रिक फॉर्म की है तो उसके आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन की मुझे ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, तो वहाँ मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कॉल करूँगी 10th लेक्चर में. तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसे सॉल्व करूँगी. ठीक है, आज आप इसे निकाल के देखिए क्या आपका आंसर निकल पाता है. एंड देर आर सो मैनी क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन द गेट एग्जाम. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, and this is of this form: the value of lambda for which the integral equation this one has non-trivial solutions. ठीक है, लैम्डा की वो वैल्यू जिसके लिए देखो ट्रिवियल सॉल्यूशन तो आपको लैम्डा 0 लेके भी मिल रहा है. ठीक है, एक और कंडीशंस भी आ जाएगी, जब आइगन वैल्यूज़ नहीं होंगी लैम्डा की तब भी आंसर आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा. बट आपसे क्वेश्चन ट्रिवियल नहीं पूछा, आपसे पूछा गया नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए, और आइगन वैल्यूज़ नहीं पूछी गई हैं. जो डी लैम्डा आया है आपका वो एक्सप्रेशन पूछा गया. ठीक है, तो यहाँ पे भी इक्वल टू 0 इक्वेशन है ना, दिस इज 0. तो इनमें से एक आंसर है. तो एग्जाम ये 2004 का ही है ये भी क्वेश्चन. ठीक है, वो 5 का था, ये 4 का है. 1 मार्क्स क्वेश्चन में होगा या फिर ये 2 मार्क्स वाले में होगा. समटाइम गेट में क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन ऊपर स्टेटमेंट दे देते हैं, नीचे उसके 2 पार्ट दे देते हैं, तो वो आपका ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन होता है. 1 मोर क्वेश्चन देखिए इसमें. The eigenvalue lambda of the integral equation ys is equal to lambda 0 to 1 sk t y of t dt. ठीक है, यहाँ gs के बजाय बस क्या नोटेशन चेंज है, ys है. अगेन आपको क्या करना है, लैम्डा की नॉन जीरो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए कि डी लैम्डा इक्वल टू 0 हो जाएगा. एंड इट वॉज आस्क्ड इन 2011. इन टुडे लेक्चर आई एम पिकिंग ओनली द क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस फॉर द होमोजीनियस फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशंस विद सेपरेबल करना. ठीक है, तो आज आप इनको ट्राई कीजिए. इन द नेक्स्ट लेक्चर 9th लेक्चर बी पार्ट आई विल गिव द सॉल्यूशंस एंड फॉर दिस क्वेश्चन आई विल गिव द आइगन वैल्यूज एज वेल एज द आइगन फंक्शंस, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट ईयर ये क्वेश्चन सेम आ जाए एंड कोरस्पॉन्डिंग टू इट आइगन फंक्शंस पूछ लिए जाएँ. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.